जय माताजी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। Hello my dear students, in this video we are going to discuss the next concept of proportion. In last video we discussed about the ratio and over here we will discuss proportion. So let us start. Remember the example which I gave you of pencil that is to be distributed between two friends Jim and Tim. Over here we are going to discuss the same example. Say for example, total 10 pencils are there and that is to be divided between Jim and Tim is into 3:2 ratio. So 3 pencils we will give to Jim and 2 pencils we will give to Tim, but still 5 pencils are left. तो अभी इन 5 pencils का क्या करें? तो फिर से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों के बीच में. Another 3 pencils to be given to Jim and 2 pencils given to Tim. So it becomes 6 with Jim and 4 with Tim. तो वो रिप्रेजेंट करता है दूसरा रेशियो, दैट इज 6:4. नाउ सेम 6:4 इज रिटन एज 6/4 एज वी डिस्कस अर्लियर. 6 and 4 किसके टेबल में आते हैं? यस, 3 के टेबल में. 3 2 जा 6 and 2 2 जा 4. सो दैट वी हैव रिटन इन प्लेस ऑफ 6 and 4. नाउ 2 is common, so we can cancel out. So it becomes 3/2. So 3:2 is equals to 6:4 and this is known as proportion. Again I am repeating what we have discussed. 6/4 we got. 6/4 को हमने simplify किया by cancelling 2. So it becomes 3/2. So here 3/2 can be represented as 3:2. So 3:2 and 6:4 are same ratio, जिसको हम बोलेंगे equivalent ratio. And both are equal, so we have put equal to sign. तब ये जो 6:4 है, that is the proportion for the 3:2. I hope the concept is clear. अगर simple words में समझे तो when two equivalent ratios are compared, then it is known as proportion. Now we are going to see important points to be remembered for the proportion. The first point is, an equation states that two ratios are equal, then it is called proportion. Remember properly this point. जो भी इक्वेशन में दो रेशियोज इक्वल है वैसे इक्वेशन को हम proportion बोलेंगे. मतलब इक्वल रेशियो मतलब इक्विवेलेंट रेशियो. नेक्स्ट पॉइंट इज, each proportion has a pair of equivalent fraction. What is equivalent fraction? जिसकी वैल्यू सेम है वैसे दो फ्रैक्शन. ठीक है, सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे ना, तब वो बन जाएगा इक्विवेलेंट रेशियो. थर्ड पॉइंट इज, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर नोन एज एक्सट्रीम्स एंड सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर नोन एज मीन्स इन proportion. Let us have the example of the proportion. This is what the proportion. 3:2 is equal to 6:4. This 3:2 and 6:4, these both are equivalent ratios and whole equation is known as proportion. इसमें जो first है that is 3 and last है that is 4. So 3 and 4 are known as extremes, while second one that is 2 and third term that is 6. So these 2 and 6, second and third terms are known as means. Next rule is, these product of extreme and product of means are always equal to each other. जैसे कि हमने आगे जो एग्जाम्पल डिस्कस किया था 3:2 इज इक्वल टू 6:4, उसमें एक्सट्रीम कौन से थे? फर्स्ट एंड
लास्ट टर्म दैट इज़ 3 and 4। तो अगर हम 3 and 4 को मल्टीप्लाई करें एंड मीन्स कौन सी टर्म्स आएगी, सेकंड एंड थर्ड, मतलब 2 and 6। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोनों में हमें आंसर 12 मिल रहा है। इट मीन्स ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। नेक्स्ट रूल इज if we want to represent the proportion then double colon is used in between the two equivalent ratios। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, to represent the proportion double colon is used in between the two equivalent ratio। और उसको बोला कैसे जाता है, जैसे कि हमने आगे वाला जो एग्जाम्पल डिस्कस किया था, मैं वही बोल रही हूँ, 3:2 as 6:4। डबल कॉलन को एस बोला जाता है, एएस। नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.2। इन दैट क्वेश्चन नंबर 1 गिवन इज सर्कल द मीन्स इन द फॉलोइंग। सर्कल द मीन्स इन द फॉलोइंग। तब हमने क्या डिस्कस किया था, मीन। किसको हम मीन बोलेंगे, किसको हम मीन बोलेंगे? तो जो भी हमें प्रपोर्शन दिया है उसमें सेकंड एंड थर्ड टर्म, उसमें सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो ओवर हियर दिस वन इज प्रपोर्शन, सो ओवर हियर सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर नोन एज मीन्स, आर नोन एज मीन्स। सो ओवर हियर दिस सेकंड एंड थर्ड टर्म वी विल सर्कल। तो सेकंड थर्ड टर्म, सेकंड थर्ड टर्म, सेकंड थर्ड टर्म, सेकंड थर्ड टर्म, दीज ऑल आर मीन्स। और वैसे भी पोजीशन तो सेम ही रहने वाली है, कोई भी प्रपोर्शन में, कोई भी प्रपोर्शन आपको दिया है उसमें सेकंड एंड थर्ड टर्म ही मीन होगी। सेम वे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 में सर्कल द एक्सट्रीम इन द फॉलोइंग। तो उसमें आपको एक्सट्रीम सर्कल करने हैं। तो एक्सट्रीम, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द प्रपोर्शन इज नोन एज एक्सट्रीम। तो ये रही फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स, these are the extremes, these are the extreme। Now the third question given is find the missing number in the following। Find the missing number in the following, find the missing number in the following। यहाँ पे हमें x दिया है, उसके नीचे 10 और यहाँ पे 6/20। ओवर हियर वी आर नॉट गिवन नंबर, तो x जो यहाँ पे है दैट रिप्रेजेंट मिसिंग नंबर। तो ये हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, और यही तो प्रपोर्शन का यूज़ है कि प्रपोर्शन से हम इजीली मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में आपको ऐसे पूछा जाता है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, तो आपको ऐसे ही करना है। ये मिसिंग नंबर है x, और x की जगह पे हमें नंबर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस डेटा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मगर यहाँ पे हमें x मल्टीप्लाई करना है, तो हम x को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, 20 को इधर नहीं ले जाएंगे, x को ऐसे ही रखेंगे सीधा। ये जो 10 है उसको हम इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे 6/20 एज इट इज़, और फिर ये 10 को हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने 10 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, नीचे तो 1 तो होगा ही होगा। तो अभी आपको पता है फ्रैक्शन में आपने सीखा था कि कोई भी फ्रैक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन आपको करना है तो न्यूमरेटर गेट्स मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गेट्स मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर। बट बिफोर यू मल्टीप्लाई यू हैव टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द डिजिट। आपको सिंप्लीफाई करना है फ्रैक्शन। तो यहाँ पे 10 2 ज़ा 20 होगा, हाँ होगा, 10 1 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20। तो 10 कॉमन फैक्टर है, वो हमने कैंसिल करा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है। अभी ये 10 कैंसिल हुआ, बचा क्या 2। अभी ये 2 और 6 की जगह पे हम 2 3 ज़ा 6 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है। कैसे, तो 2 3 ज़ा 6। अब ये 2 इज़ द सेम फैक्टर, सो दैट कैन गेट कैंसल आउट। बचा क्या 3, तो 3 अपॉन नीचे क्या बचा 1। तो 1 तो नीचे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें क्या मिला, मिसिंग नंबर मिल गया 3, हमें मिसिंग नंबर मिल गया 3। तो x इज़ इक्वल टू 3। आपको ऐसे
ये सॉल्व करने हैं। हम दूसरा देख लेते हैं 2/3 इज इक्वल टू x/12। इसमें भी देखो अननोन नंबर हमें न्यूमरेटर में दिया है। जब भी अननोन नंबर न्यूमरेटर में दिया है तब सीधा आप उसको ऐसे लिख लो x, और फिर ये 12 को सामने वाले के न्यूमरेटर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो सामने वाला फ्रैक्शन ऐसे ही लिख लो और फिर ये 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। अभी इसको हमें सिंप्लीफाई करना है बिफोर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो 12 की जगह पे हम लिखेंगे 3 4 हम क्या लिखेंगे? 3 4 लिख सकते हैं। और अभी ये 3 आर द कॉमन फैक्टर्स, सो दैट कैन गेट कैंसल आउट। तो बचा क्या? 4, और नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 4 2 8। तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया x इज इक्वल्स टू 8। x इज इक्वल्स टू 8। इसके जैसे ही ये दोनों करने हैं C एंड D। सेम वे आपको करना है C एंड D। तो ये आप अपने आप से सॉल्व करना, ट्राई करना, सॉल्व करने की आपसे डेफिनेटली हो जाएगा। याद रखो कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ कि यहाँ पे y है मिसिंग नंबर, और वो दिया है हमें डिनोमिनेटर में, तो हमें y को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होगा y इंटू 50। अभी ये 150 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इक्वल टू करके 3 इंटू 150। अभी ये y के साथ हमें 50 भी दिया है, तो ये 50 को हमें यहाँ से हटा के इसके डिनोमिनेटर में ले जाना है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई अननोन नंबर के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई है तब हम उसको वहाँ से हटा के डिनोमिनेटर मतलब डिवीज़न में रख सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 150/50। अब इसका सिंप्लीफिकेशन तो ईजी है, सिंप्लीफिकेशन आप अपने आप से करोगे। सेम वे आपको d दिया है 6/5 इज इक्वल्स टू 48/y। यहाँ पे भी y डिनोमिनेटर में है, तो हमने यहाँ पे जैसे किया क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम वे आपको यहाँ पे करना है। ये भी उसके जैसा ही है e वाला 2/5 इज इक्वल टू x/20। तो इसमें x हमें न्यूमरेटर में दिया है, तो हम उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा ये 20 को इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 2/5 इंटू 20, नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे, इज इक्वल टू x। अभी इसको सिंप्लीफाई आप अपने आप से करोगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आएगा तब भी इस चैप्टर के आंसर्स आपको मिलेंगे, वरना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा। सिंप्लीफिकेशन तो आपको आना ही चाहिए, और अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं आता इट मीन्स के आपको टेबल्स अच्छे से नहीं आते हैं। इसमें भी यही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई x को हम लिख देंगे ऐसे, ये 10 को हम 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मगर बिफोर मल्टीप्लाइंग यू हैव टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्रैक्शन, देन एंड देन यू विल गेट करेक्ट आंसर। सो दैट ऑल्सो यू विल डू बाय योर ओन। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। Which of the following proportions are equivalent? हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? Which of the following proportions are equivalent? अभी proportion equivalent कब होगा? जब भी product of extreme is equal to the product of mean आपको मिलेगा, तब भी वो proportion equivalent कहलाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब भी आपको ये एक्सट्रीम की प्रोडक्ट, एक्सट्रीम यहाँ पे क्या है 1 and 10, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा सेम आंसर आपको जब ये मीन मल्टीप्लाई करो और मिले तब भी वो दोनों इक्वल हो गए, और अगर वो इक्वल होते हैं तब भी इसको इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन बोला जाता है। सो लेट अस सॉल्व दैट। फर्स्ट में पहले तो मैं लिखती हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू, अभी इसमें एक्सट्रीम हम किसको बोलेंगे 1 and 10 को, तो 1 and 10, तो उसका आंसर मिला हमें 10। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स क्या है 2 and 5, तो 2 and 5 को मल्टीप्लाई करना है तो हमें आंसर मिला 10। तो हियर
हियर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन. So given proportion is equivalent. So given proportion is equivalent. ऐसे अगर दोनों इक्वल टू होते हैं तब भी इसको इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन बोला जाता है. ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन. अभी बी देख लेते हैं. नेक्स्ट वन 15:25 एस 20:25. इसको हमें चेक करना है. तो पहले आपको इसका प्रपोर्शन ढूंढना है. आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन. क्या करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ढूंढना है एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन ढूंढना है. तो पहले तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू एक्सट्रीम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. तो 15:25. अभी 15:25 मतलब ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आप भी अपने आप से ट्राई करना. ठीक है, तो उसका आंसर हमें मिलेगा 375. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट मीन सेकंड एंड थर्ड टर्म 25:20. तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 500. उसका आंसर आपको क्या मिला, 500. ठीक है, अभी देखो 375 और 500 इक्वल कहलाएंगे, नो दे आर नॉट इक्वल. सो यहाँ पे हम लिख लेंगे हियर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ means is not equals to the product of means. So the given proportion is not equivalent. So given proportion is not equivalent. आपको ऐसे लास्ट में लाइन लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमें क्वेश्चन ही ऐसे पूछा है, दैट इज व्हाई. ठीक है, तो सेम वे आपको ये सी करना है और उसके बाद का डी भी करना है. सी एंड डी यू विल डू बाय योर ओन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द फॉलोइंग. फाइंड द मिसिंग न्यूमरल्स इन द फॉलोइंग. इसमें भी आपको वही करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, मगर डिफरेंस कहाँ है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया था और यहाँ पे आपको प्रपोर्शन के फॉर्म में दिया है, मगर मेथड तो वही करनी है, कुछ चेंजेस नहीं है. अभी सुनो, आप लोग कैसे कर सकते हो, यू कैन डू दिस सम बाय 2 वेज. आप 2 तरीके से कर सकते हो. मैं दोनों आपको करवा के दिखाऊंगी. ठीक है, आई विल डू बोथ ऑफ यू. तो आपको जो ईजी लगता है वैसे कोई एक मेथड से करना है. पहले तो हमने जो पहले क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको करवा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 में सॉरी, कि ये जो रेशियो हमें दिया है उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. यस, वी कैन राइट. फिर ये एस को हम इक्वल टू कर सकते हैं और ये जो दिया है उसको भी हम रेशियो में से फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. अभी जैसे हमने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये y को आपको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो y इंटू 6 इज इक्वल्स टू 8 को 24 के साथ करना है, 8 इंटू 24. ठीक है, 8 इंटू 24. अभी ये 6 को आपको शिफ्ट करना है इक्वल टू के राइट साइड, तो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में. कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में. तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 8 इंटू 24 अपॉन 6. फिर अभी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई में 6 के टेबल में 24 आते हैं, हाँ या ना, यस. कितने, तो 6 4 ज़ा 24. तो इसकी जगह पे 24 की जगह पे हमने 6 4 ज़ा लिखा. अभी 6 6 गेट कैंसल आउट,
ठीक है, तो अभी हमें क्या नंबर मिला, डिनोमिनेटर में तो अभी कुछ नहीं बचा है, ओनली 1 इज देयर। न्यूमरेटर में 8 है एंड 4 है, तो दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई। तो 8 4 जा क्या होता है 32, तो y इज इक्वल्स टू 32, y इज इक्वल टू 32। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। अभी सेम को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। ये हमें प्रोपोर्शन दिया है, ठीक है। अभी इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम कौन से है 6 इंटू वाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन सेकंड एंड थर्ड टर्म 8 इंटू 24। ठीक है, अभी तो हमने जैसे आगे सोल्व किया था वैसे ही करना है कि y इज इक्वल्स टू 8 इंटू 24 अपॉन 6, तो आपको आंसर मिलेगा 32। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो एंड बोथ आर करेक्ट ओनली। अभी नेक्स्ट बी है, उसमें क्या करेंगे सेम वे। ठीक है, अभी आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगे वो करना, मैं एक ही मेथड से करूँगी। जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो अभी मैं सीधा लिख रही हूँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 25 अपॉन 75। अभी 25 के टेबल में 75 कहाँ आते हैं, 25 3 जा, तो अब ये 25 कैंसिल हो सकते हैं, हाँ। अब ये 3 बचे डिनोमिनेटर में, 3 के टेबल में 15 आते हैं, कैसे 3 5 जा 15, तो 3 ऑल्सो गेट कैंसल। तो अभी x क्या बचा, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। सी भी उसके जैसे ही करना है आपको, ठीक है, तो दैट यू विल डू बाय योर ओन एंड डी ऑल्सो यू विल डू बाय योर ओन। कंसेप्ट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। मेनली प्रैक्टिस तो आपको सिंप्लीफिकेशन में चाहिए। यू हैव टू रिड्यूस ईच एंड एवरी फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। In that one, the ratio of the length and breadth of a carpet is 5:4. You are given length and breadth ratio, that is 5:4. तो इसको हम proportion में ऐसे भी लिख सकते हैं, length is to breadth as 5:4. If the breadth is 20 meter, हमें यहाँ पे breadth दी है, breadth we are given that is 20 meter. तो you have to find length. You have to find length. तो इसमें हम कैसे करेंगे, सी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख सकते हैं। ओके, सो लेंथ को हमें मल्टीप्लाई करना है 4th टर्म के साथ, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एंड ब्रेड्थ को हमें मल्टीप्लाई करना है 3rd टर्म के साथ, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन। नाउ लेंथ तो हमें फाइंड आउट करनी है। अभी ये 4 का हम क्या करेंगे, तो इसके डिनोमिनेटर में रख लेंगे। अभी तो आपको रट जाना चाहिए कि हमें जो भी फाइंड आउट करना है उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है उसको हमें सामने इक्वल टू के सामने डिनोमिनेटर में रख देना है। तो ब्रेड्थ इंटू 5/4। अभी ब्रेड्थ तो हमें दी है, दैट इज़ 20 मीटर। ब्रेड्थ हमें कितनी दी है, 20 मीटर। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, 4 5 20 होता है, तो 4 गेट कैंसल। तो अभी न्यूमरेटर में क्या बचा, 5 and 5, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 25। और आंसर किस में, कौन से यूनिट में आएगा, आंसर कौन से यूनिट में आएगा, मीटर में। सी रेशियो और प्रपोर्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, मगर यहाँ पे हमें लेंथ पूछी गई है और लेंथ का यूनिट होगा ही होगा। दिस इज़ व्हाट काइंड ऑफ मिसिंग नंबर।
तो इसका यूनिट होगा, और इसका हम कौन सा यूनिट लगाएंगे, मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर, कौन सा यूनिट हम लगाएंगे। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसने ब्रेथ आपको मीटर में दी है तो लेंथ भी आपको मीटर में ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर यूनिट आपको लिखना कंपलसरी है। अभी 7th क्वेश्चन जो है वो है, इन अ स्कूल देयर आर 24 बॉयज़ एंड 72 गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू दैट ऑफ बॉयज़। मतलब आपको नंबर ऑफ बॉयज़ दिए है 24 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दी है 72, तो आपको गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो फाइंड आउट करना है। गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो अगर फाइंड आउट करना है तो जो पहले दिया है, गर्ल्स पहले दिए, तो हमें उसके जितने भी नंबर है उसको न्यूमरेटर में रखने हैं, और बॉयज़ हमें बाद में दिया है, मतलब उसका जो नंबर है वो हमें डिनोमिनेटर में रखना है। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों किसके टेबल में आते हैं वो आपको याद करना है। दोनों किसके टेबल में आएंगे, दैट यू हैव टू रिमेंबर। चलो जल्दी याद करो, दोनों किसके टेबल में आएंगे। ठीक है, दोनों एट के टेबल में आते हैं। याद आया कुछ? यस, तो 8 9 एंड 8 3 8 9 and 8 3. Now these both factors are common, 8 8, so we can cancel it out. बचा क्या, 9 and 3। अभी देखो 3 के टेबल में भी तो 9 आता है, तो ये 9 की जगह पे हम 3 3 लिख ले। अब ये 3 3 भी तो कट हो गए, तो बचा क्या, 3, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, तो हमें रेशियो क्या मिला, 3:1। रेशियो क्या मिला, 3:1। दिस इज़ व्हाट योर आंसर। सो विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 5.2। whatever homework I have given you and whatever I told you to do by your own, keep on doing practice, then and then you will understand more better way. प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स में तो आपको डेफिनेटली परेशानी फेस करनी पड़ेगी। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the next exercise, with the next concept. Till then, have a nice day everyone. Goodbye.